السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے۔ میں دبئی سے غلام حسین اطاری بات کر رہا ہوں۔ میرا پاپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ لوگ جو مدنی مذاکرہ آزادی کے موضوع پر کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ انشاءاللہ اسلامی طریقے سے انشاءاللہ کل کا روزہ رکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ میں چینل دیکھتا رہتا ہوں۔ اس مذاکرہ بھی آپ کے مذاکرے بھی امیر اہل سنت کے دیکھتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کل روزہ رکھ کے اور دعائے ظہر کے ٹائم نفل بھی پڑھ کے اس آزادی منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دعا کر کے یہ پہلے جس طریقے سے مناتے تھے یہ وہ طریقے صحیح نہیں تھے جو آپ لوگوں نے ابھی بتائے ہیں، وہ طریقے اسلامی طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کے۔ میں مرتضی علی شاہ پشاور خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں مدینہ چینل دیکھتے ہوئے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب خوش ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک بابا صاحب کو اور آپ سب بھائیوں کو اچھی عمر نیک اعمال کے لیے دے، اور بابا صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے اسپیشل دعا کرے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالی اپنا فضل اور کرم کرے اور ہم صحیح دیندار ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دبئی والے نے تو کہہ دیا ہم روزہ رکھیں گے، میں روزہ رکھوں گا، یا کچھ اس طرح روزہ کر رہے تھے، تو آپ رکھو گے کہ نہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ سحری کرواؤ گے تو رکھیں گے، سحری کا مطالبہ نہیں کیا۔ چلو ہم انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب ہے نا، اعلان ہوا تھا 14 اگست ہم روزہ رکھ کر منائیں گے۔ تو روزہ رکھنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا کمزوری محسوس کرتا ہے، تو اللہ گلہ کرنے کی بھی طبیعت نہیں چاہتی، بعض اوقات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ڈھیلا ہی اچھا ہے اور ٹائٹ برا ہے، جو گناہوں بھرے روڈوں پہ لے آئے۔ اب تو روڈوں میں جانا بھی نہیں ہے کل اپنے کو، گھر پہ رہنا ہے، ادھر آنا ہے۔ فیضان مدینہ میں دوپہر کو ہے نا کل بابا تربیتی اجتماع ہے نا، تو آج تو یہ ساری رات یہاں سلسلہ معتکفین اور سب یہ سب ترکیب تھی نا۔ جی بابا، یہ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے سے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے بابا۔ یہ سب آئے رکنے کے لیے، تقریباً جو میری معلومات ہے نا یہ رکنے کے لیے آئے ہیں۔ امید ہے، اندازہ ہے، خواہش، بلکہ خواہش میں عافیت ہے، امید بھی نہیں ہے کہ سب رکے، خواہش ہے کہ رکے اگر ہے تو۔ بھائی کون کون تربیتی اجتماع میں رکنے کے لیے ہیں بابا؟ آگے کا میدان صاف ہے۔ نہیں وہ سمجھے نہیں ہوں گے نا بھائی، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ میں سے کون کون؟ پاپا سردار آباد میں بھی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ نہیں یہاں دن پڑے نا، چھٹی ہے آپ لوگوں کی، کل کا دن ہو سکے تو فیضان مدینہ میں ہی گزارنا چاہیے، ادھر ادھر جانے کی سائے نہیں۔ وہ اندھی گولی سمجھتا ہے کوئی؟ اندھی گولی کس کو بولتے ہیں؟ اندھی گولی کون کون سمجھتا ہے اندھی گولی؟ اور 2-4 ہاتھ اٹھ رہے ہیں یار، یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتا آپ لوگ یار، اندھی گولی نہیں سمجھتے؟ جس کی آنکھیں نہ ہو یہ معنی بتائیں گے اب۔ اندھی گولی بابا آج ہمارے اسلامی میں نے 12 بجے سے پہلے اوپر جو بیٹھے تھے ان کو بلا بھی لیا باہر نیچے، اندھی گولی سے بچانے کے جی لیے۔ بابا۔ اب سمجھ گئے؟ اب بھی کم سمجھے، میں بتا دوں؟ نہیں یہ کوئی تو بتا دے گا یار، کوئی تو صحیح بتا دے گا یار، کوئی 10 روپے پیش کر دوں گا یار، مگر اب تو 10 روپے میں چائے بھی نہیں آتی ہوگی، 10 اور ڈال کے 20 روپے۔ چلو کوئی ایک سے پوچھ لیتے اندھی گولی کیا، نہیں تو 3 دن کا قافلہ پھر مدنی سزا لینی پڑے گی۔ جو قافلے میں بابا جائے گا تو وہی پہلے تو بتائے نا، وہ تو بات کا اگر غلط بتائے گا تو۔ نام قبول کر لے میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، اندھی گولی کا مطلب ہے جو آگے پیچھے اوپر نیچے کسی کو بھی نہیں دیکھتی۔ اس کو پکڑ لو یار، جلدی پکڑ لو۔ تو اندھی گولی کیا کرے گی؟ نہ آنکھ والی بھی ہوتی ہے گولی جو دیکھتی ہے، دیکھے گی نہیں، اندھی ہے نا۔ صحیح تو بولتا ہے یار، دیکھ اس کو بھی پکڑ لو۔ بات تو صحیح ہے، دیکھتی نہیں ہے گولی، وہ گولی اندھی ہے تو اس کا مفہوم مخالف ہے، آنکھوں والی گولی بھی ہوتی ہوگی نا، جو دیکھ کے سفر کرتی ہے کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے۔
यार अभी तो 12:30 भी नहीं बजे यार। जो आदमी बोले कि बहुत गहरी नींद थी। ये अंधी गोली बताएं कि अंधी गोली किसको कहते हैं। फिर हम आपको एक वीडियो बताएंगे कि जिसमें अंधी गोली से जो आज तुमने वो वीडियो देखकर ही आपकी मेरे को अंधी गोली का पता चला है। अपना पोल खोलता हूँ, मेरे को नहीं पता था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले बापा जान जो फायर करते हैं और उसके बाद जो वापसी आती गोली, तो वो ज्यादा नुकसान करते हैं उसको। फायर करते हैं तो वापसी भी आती है, इसको तो पकड़ ही लो। ऊपर से जो नीचे आती बापा जान, जी, जो वापस आती है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जो जब आती है। ऊपर से तो फायर तो स्ट्रेट नहीं करते सीधा। चली नीचे से होती है तो ऊपर से कैसे आती है? हवाई फायर बापा। अच्छा यूं बोलो ना, हवाई फायर। जी बापा। हवाई फायर से जो बस 10 रुपए दे दो इसको। वो हवाई फायर से जो ऊपर जाकर पलट के आती है, ये उसको अंधी गोली बोलते हैं। आप किसको बोलते हैं अंधी गोली? तस्दीक नहीं, अंधी गोली मैंने हवाई फायर। अब इसको 2 दर्स, रोज के 2 दर्स दिया करो। अंधी गोली उसको बोलते हैं, हवाई फायर किया अब वो जाएगी, जो भी इसकी रेंज है, जो भी इसकी हद है उस तक जाएगी, फिर ये ज़रा नीचे गिरेगी। अब वो ये बहुत गर्म होती है, नीचे गिरती है ना। अब अगर किसी की खोपड़ी पे गई, गिरी, वह उसका बेड़ा ही पार है। कभी खोपड़ी पे, कभी कंधे पे, कभी कहीं गिरती है। तो ऐसे मौके पर जब अंधी गोली गिरे तो मदनी चैनल के वो सिंध के कोई पुलिस वाले ने तस्वीरात दिए। ये कहा था कि छत, ऐसे मौके पर आदमी छत के नीचे रहे, खुली फजा में ना रहे, ये गोली लग सकती है, वो अंधी गोली। उसके तस्वीरात तो बहुत अच्छे यार, पूरी दाढ़ी थी, बहुत अच्छे तस्वीरात थे। लेकिन बाबा अभी हम आपको एक ऐसे इस्लामी भाई के तासुरत बता रहे हैं कि जो अंधी गोली के निशाना बने, मगर इसमें एक बहार भी है। जी चलाइए। मैं 13 अगस्त की रात को लाइट हाउस की तरफ से आ रहा था, रात तकरीबन 12 बजे, और उसके बाद जहाँ चारों तरफ से अंधाधुंध हवाई फायरिंग हुई और उसके नतीजे में मुझे भी सर पर आकर गोली लगी, जिसकी वजह से मेरा आधा जिस्म से काम करना छोड़ दिया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर देखकर ये हैरान हो गए कि उन्होंने देखा कि दिमाग पर गोली लगी है, और हैरत की बात यह है कि मग़ज़ के पास जाकर वो एक बाल बराबर गोली रुक गई है। ये शान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाले पाक का है कि जो आज तक मैं अपने सर पर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो गोली और आगे आ जाती तो डॉक्टर का कहना ये था कि या तो जान चली जाती या फिर दिमाग को बिल्कुल ख़त्म कर देती। मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन जो उस वक्त भी रो रहे थे, अगर ये सारा वाक़यात हो जाता तो शायद मेरा ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले और जानने वाले चाहने वाले सबको मलाल का एक रंज पहुँचता उनको। अल्हम्दुलिल्लाह नाले पाक की बरकत और मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की दुआओं की बरकत थी कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से बाहर आ गया। जिस रात मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उसी रात मज़ीद वाक़यात भी हुए कि एक नौजवान अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। जिस तरह मुझे अंधाधुंध फायरिंग के साथ मुझे गोली आकर लगी, इसी तरह एक गोली उस नौजवान को आकर लगी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब यहाँ से गोली निकालना चाहिए तो वो गोली यहाँ आ गई, जब यहाँ से निकालना चाहिए तो यहाँ आ गई। उस लड़के का 12 घंटे तक ऑपरेशन रहा, बिल आखिर 12 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये इल्तिजा करूँगा कि जो इस रात में फायरिंग करते हैं और अपनी कुछ देर की खुशी में दूसरे मुसलमानों के घरों को गम में तब्दील कर देते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपने आप को भी इससे बचाइए फायरिंग से और दूसरों को भी इससे बचाइए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं कुछ अरसा पहले अपने घर से निकला किसी शादी के लिए, और वहाँ पर आतिशबाजी और फायरिंग हो रही थी, जिसमें मेरे को एक फायर लगा और मैं ज़ख्मी हुआ, जिसके बाद मेरे को सिविल अस्पताल ले जाया गया। फायर मेरे को टांग पे लगा, ये उसका निशान है। मरहम पट्टी की गई, उसके बाद मैं घर आ गया। तकरीबन 1-1.5 महीने तक मैं चरपाई पे ही रहा। अल्लाह, ये दोनों के केस में अंधी गोली का तस्करा नहीं है कि कौन सी गोली लगी, बहरहाल अंधी गोली भी लगती है। इसमें वो नाले पाक की बरकत से मुझे एक और बहार याद आ गई, मदनी बहार, बल्कि 2 मदनी बहार हैं। एक बार मैं हवाई जहाज़ में गालिबन कोई पैसेंजर बराबर में था, मेरे हवाई जहाज़ का वाक़या है, मॉडर्न था, पता है क्या बात पर बात निकली। तो उसने बताया कि वो दावत इस्लामी वाले ने मुझे, शायद ये इस तरह की बात थी कि मेरे को एक कार्ड दिया था नाले पाक का तोहफे में। दावत इस्लामी की बात चली ना,
तो इस पर तो मैं वो उसको देखो यूँ करके शायद दिखाया भी उसने मुझे कि हर वक्त मैं अपने पास रखता हूँ उसको। तो एक बार बोले मैं कार में था और मेरी कार कहीं नहर में शायद उतर गई का, पानी की नहर में, और पूरी कार जो थी वो पानी के अंदर चली गई, पूरी डूब गई कार, और फिर एकदम से उभर गई और मैं बाहर निकल आया। उसका कहना था कि नाले पाक मेरे पास था और इसकी बरकत से बस मैं बच गया, अल्लाह की रहमत। इसी तरह किसी को ऐसा याद पड़ता है, किसी ने मुझे मकतूब भेजा था या सुनाया था ये मदनी बहार, कि उसको फोड़ा हुआ था और किसी सूरत से वो शायद तकलीफ बहुत थी और जा नहीं रही थी तकलीफ, उस पर उसने नाले पाक जब रखा, रात को रखा या कहीं लुको प्लास्टर या किसी चीज़ से उसको वो जाम कर दिया इधर, फिर जब वो सुबह के वक्त थोड़ा शायद गायब हो गया था, यानी कि वो चीज़ चली गई थी जो भी तकलीफ थी। तो नाले पाक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक, अभी हर फर्द नाल का मतलब नहीं समझता, नाल अरबी लफ्ज़ है, तो हम भी इसको नाल हमारे यहाँ बोला जाता है अदबन नालैन शरीफ। ये नालैन जमा नहीं है नाल की, बल्कि ये तस्निया है, दो नाल को नालैन बोलेंगे। जमा इसकी निकाल, निकाल जमा बनेगी निकाल, नून के नीचे ज़ेर आएगा। तो ये वाहिद के लिए भी उर्दू में इस्तेमाल होता ही है। एक कार्ड जो है नाल शरीफ का, इसको भी बोलते हैं कि नालैन शरीफ का कार्ड। तो अब ये मतलब बोलते हैं, गलत और आम बोल दें इसको, जो भी बोले, तो इसमें भी हरज नहीं, इसको नालैन पाक का कार्ड। असल ये नालैन पाक नहीं है, ये कार्ड जो है इसको नालैन पाक बोलते हैं, असल नालैन पाक नहीं है, ये नालैन पाक का अक्स है, नाले पाक का अक्स है, यानी कि इसकी तस्वीर है, इसका नक्श है, उसके मुताबिक ये समझो बनाया गया है। अब इसमें ज़रा कि वो खत आगे पीछे भी हो जाता है, सही बना हुआ हो, ये एक्यूरेट 100%, ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन बहरहाल निस्बत इसकी है और इसकी बरक़ात आज से नहीं, ये सदियों से बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह अल मुबीन बयान करते आ रहे हैं नाले पाक। इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं नाले पाक की बरकतों पर। यहाँ तक आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो लिखा है कि यानी बुज़ुर्गों से ये मनक़ूल है कि अगर किसी सामान में नाले पाक का नक्श रख दिया जाए तो वो सामान चोरी ना हो, चोरी से हिफाजत। जिसको औरत को दर्द ज़ेह यानी विलादत के वक्त जो तकलीफ़ होती है वो शदीद होती है, तो अगर नाले पाक का नक्श उसके सीधे हाथ में रख दे, सीधे हाथ में दे दे, इंशाअल्लाह आसानी से विलादत हो जाएगी। एक नक्श, ये बहुत सारे नक्श जो हैं वो इसकी तरफ मतलब मनक़ूल हैं नाले पाक के, एक ये भी है। बाबा मकतबतुल मदीना पर भी नक्श नाले पाक जो है वो तलब किया जा सकता है, उस पर फ़ज़ाइल भी लिखे हैं उस जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ
हाँ ताजदार हम भी हैं। दावत इस्लामी का ये भी एक कारनामा है कि नाले पाक का तारुफ इससे पहले लाखों को नहीं पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से पहले से ही मुझे पता था, हमारा तो माहौल था ना मजहबी, लेकिन जनरल पब्लिक को नाले पाक का पता नहीं था कि ये नाले पाक का नक्श है और इसकी बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये शेर जो है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये किसका शेर है और इसके माना क्या है आप बताएं कि मैं बता दूं? मैं इसको ये दूंगा, साथ में मदनी फीस ये लूँगा कि आज रात और कल सारा दिन सजा के रखना होगा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, ये आला हज़रत अलैहि रहमा का शेर है। आला हज़रत का शेर है। और इस शेर के अंदर आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह बादशाहों के ताज होते हैं, अगर आका जिस तरह बादशाहों का ताज होता है सर पर, आका अलैहिस्सलाम के बादशाहों के ताज होते हैं, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम के नाले पाक अगर हमारे सर पर मिल जाए तो हम समझेंगे कि ताज से बढ़कर है हमारे सर पर। हम ताज, यानी ये ताज से बढ़कर है। इसको पकड़ लो मेरा ख्याल है। चलो 12 माह दे दो यार, पहले से दिए हुए तो 25 माह कर दो। भाई इमाम साहब हैं बाबा, आप इमाम साहब हैं तो फिर तो उसको वक्फ मदीना होना चाहिए यार। लब्बैक बाबा, लब्बैक बाबा जान। बाबा शेर जब सुनेंगे तो कुछ समझ के ही झूमेंगे ना हम तो बापू। तो नहीं, झूमना तो है, झूमते हैं तरन्नुम पर, आवाज़ पर। खुश आवाज़ जितना ज़्यादा होगा झुमाता ज़्यादा है वो, पल्ले खाक भी ना पड़े। यानी बड़ी मायूस कुन हालात है, समझ ही नहीं पड़ती यार। हालांकि ये शेर उस शेर के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा आसान है। प्यारे बापा जान, ये शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला का शेर है। इसमें आप अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमा रहे हैं कि अगर मुझे अपने सर पर रखने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाले पाक मिल जाए तो फिर मैं भी कहूँगा कि हाँ मेरे भी सर पर ताज आ गया। आधी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का शेर है और इसमें फरमाते हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि अगर नाले पाक रखने का सर और हमें भी मुयस्सर आ जाए तो हम भी ताजदार, यानी हम भी बादशाह हैं, हम भी ताज वाले हैं। इसका खुलासा यही है। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी, यानी हम भी बादशाह हैं, ताज वाले हैं। बिल्कुल नसर की तरह का तो शेर है, काफ़ी हद तक नसर की तरह। पर नसर क्या होता है फिर इसमें, फिर बात दूर निकल जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। ये क्या होता है? माशाअल्लाह ये काफ़ी बेहतर बताया इन्होंने कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। यानी ये ज़ौक़ नात का शेर है। शहनशाह सुखन हज़रत मौलाना हसन रज़ा हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर है। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, ये नाले पाक है क्या? ये नक्शे नाले पाक है, वहाँ ओरिजिनल नाले पाक की ख्वाहिश है ना। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हम भी बादशाह हैं, हम ताजदार हैं, सर पे मतलब नाले पाक हमारे। ये अकीदत का इज़हार है। तो चलिए इनको पेश कर देते हैं और वो अधूरे शाह को भी दे देते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।